Welcome to my channel. Today we are going to talk about Scorpion Ascendant and how the month of October 22 is going to pan out for the Scorpion Ascendant people. We will first start by looking at the Ascendant Lord. The Ascendant Lord Mars is going to transition through the 7th house till 15th of October, and whenever the Ascendant Lord passes through the 7th house, the individual has to go and approach others for making his work successful and strike a conversation with them, and it is this quality of interaction that actually determines the quality of success for Scorpion ascendant people. In the first half of the month, 7th lord Venus will be in the 11th house, and its debilitation is getting cancelled through the Mercury, which is occupying its own house. So the first half of October will continue to provide opportunities for you to shine in the public sphere and increase your reputation. Mars is also the owner of the sixth house of service, and those who are in service will experience good time in the job at the beginning of the month. So, the first week of October, especially from 1st to 4th of October, will be very good for people who are in service or jobs, but one has to be cautious in a sense that the ascendant Lord Mars is going to move into the 8th house on 16th of October, and it is going to remain stationed here till the 13th of November. So one has to take all the key decisions that may impact their life before 15th of October, because once this ascendant lord moves into the 8th house, that is not considered a very good position from the placement perspective. And at the same time, after 15th of October, the 10th house lord Sun will also move into its debilitated sign in the 12th house. So people who are associated with an MNC, or if you are staying in a foreign country, then this transit will help you. Otherwise, it is going to create problems at the work front. So 10th Lord in 12th is also not a very good position, and first Lord in 8th house again is a problematic situation. So the Scorpion ascendant people needs to be very cautious from 16th of October till 13th of November. This is the time frame in which the ascendant lord will be placed in the 8th house. So one of the remedies of the ascendant lord in the 8th house is to engage yourself in learning astrology or do some kind of a research work till the time ascendant lord is posited in the 8th house. So from 16th of October to 13th of November, try to pursue the activities that are indicated by the 8th house so that this placement does not create problems for you. Venus is also going to move into the 12th house, on which is its own sign, on 19th of October, and it is going to cancel the debilitation of the sun. So sun will move to the 12th house on 16th of October, and Venus will move on 19th of October. So in the first half of the month, Venus debilitation is getting cancelled by Mercury, and in the second half of the month, when Venus and Sun moves to the 12th house, the same situation will happen where Venus will be cancelling the debilitation of Sun. This 10th house Lord in the 12th house, along with the 7th house Lord also in the 12th house, would mean that after 19th of October, people who have businesses that are related to export or import of garments, vehicles, or even gems and jewels, they will get benefited by this kind of a placement. Jupiter is passing through its own sign. So Jupiter owns both the second and the fifth house houses, very important houses from for the Scorpion ascendant people. So people who are involved in the activities that are related to fifth house, people who are in education, people who are artists or engage in creative activities or in speculation will see an exceptionally good time in the first half of the month. Till 15th of October, Jupiter is placed in its own sign. It formulates a trine with Saturn, and at the same time, it has the beneficial aspect of three planets, Sun, Venus, and Mercury, on the fifth house. So, if you are a student, the whole month will continue to be excellent for you. But if you want to try your luck in speculation, then 1st to 15th of October is the best time for you to succeed and earn some money through the stock market. Saturn is the third and fourth house lord, and it continues to pass through the star of Mars. So people will have to make a lot of effort, especially in the second half of the month, if they want to succeed at their workplace.
and a lot of your success will be dependent on the quality of the effort that you make. As I said earlier, if you are engaged in the professions that are related to 12th house, so if you work with a not-for-profit organization, or you are a doctor who works in a hospital, you have any foreign connection in your workplace, then this transit will be exceptionally beneficial for you. Mercury is the lord of 8th and 11th house, and it will remain till 25th of October in its own sign. Here, Mercury will continue to get the aspect from Jupiter, and as a result, people who are involved in the businesses that are indicated by Mercury, people who are working in a brokerage firms, or people who are involved in insurance, taxation, or research, they will continue to get benefited through this placement of Mercury. We will also take a look at Rahu and Ketu. Rahu and Ketu both are located in an exceptionally good places. Rahu is considered very strong in the sixth house. Rahu is considered exceptionally strong in third, sixth, and 11th house, and the degree of strength increases with each house. So sixth house is also considered very good because it helps you in dismantling your enemies, and Ketu in the 12th house also will help you to touch higher dimensions of spirituality, and especially in the second half when Sun, Venus, and eventually Mercury also joins here. It will be a cluster of four planets in the 12th house, and as I said earlier, any activity that you pursue related to the 12th house will be of immense benefit to you. Every month I talk about certain dates where people need to be cautious of. In the case of Scorpion Ascendant, in the month of October, the whole of second half starting from 16th of October to 13th of November, when the Ascendant Lord is placed in the 8th house, that is a time frame when Scorpion Ascendant people need to be very cautious. They should avoid taking any key decisions which may have a lasting impact of them in the times to come. So that's the summary for you for the month of October. Please do subscribe to my channel, and thank you very much for watching this video. नमस्ते दोस्तों, मैं प्रसाद जोशी अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम जानने का प्रयत्न कर रहे हैं कि वृश्चिक लग्न वालों के लिए अक्टूबर 2022 का महीना कैसा रहेगा। सबसे पहले हम लोग लग्नेश की बात करते हैं। लग्नेश मंगल 15 अक्टूबर तक सप्तम भाव से भ्रमण करेंगे। सप्तम भाव आपके बिजनेसेस या पार्टनर्स का होता है और ये आपकी ऑपोजिशन को भी दिखाता है। तो यहाँ पे 15 अक्टूबर तक अगर व्यक्ति को अपने काम में सफल होना है तो उसको खुद दूसरों को जाके अप्रोच करना पड़ेगा। इस महीने में पहले हाफ में मंगल छठे भाव का भी स्वामी बनता है, तो छठे भाव का स्वामी का सप्तम भाव में भ्रमण होता रहेगा प्रथम हाफ में अक्टूबर के। तो अगर आप सर्विस या जॉब से जुड़े हुए हैं तो आपके लिए महीने की शुरुआत यानी कि 1 से लेकर 4 अक्टूबर का तक का समय बहुत अच्छा है, और आपको ये अपने कार्यस्थल पे जहाँ पे भी आप जॉब करते हैं वहाँ पे आपको ये सिद्धि दिलाने का काम करेगा। आपको सारे अपने जितने भी निर्णय लेने हैं जिनका आपके ऊपर आगे जाके प्रभाव पड़ सकता है अगले 2-3 महीनों में, वो आपको 15 अक्टूबर के पहले ले लेने चाहिए। 15 अक्टूबर के बाद 16 अक्टूबर से 13 नवंबर तक मंगल अष्टम भाव में चले जाएंगे, और लग्नेश का अष्टम भाव से भ्रमण यानी कि व्यक्ति के लिए परेशानी खड़ी करने वाला होता है उसके प्लेसमेंट के हिसाब से। इसकी एक काट ये होती है कि अगर आप अष्टम भाव से जुड़ा हुआ ही कार्य करने में सफल होते हैं इस समय में, यानी कि अगर आप एस्ट्रोलॉजी से जुड़ते हैं, एस्ट्रोलॉजी सीखने की कोशिश करते हैं इस समय में, या फिर अगर आप रिसर्च में ही हैं या इंश्योरेंस या टैक्सेशन के बिजनेस में है, तो भी ये प्लेसमेंट आपको उतना हार्म नहीं करेगा। इनफैक्ट इन सब चीज़ों से आपको फ़ायदा होगा अगर आप ये चीज़ें करते हैं तो, जब मंगल यहाँ पे बैठेगा आके 16 अक्टूबर से 13 नवंबर के बीच में। इसके अलावा दो चीज़ें और हो रही हैं कि जो आपके दशम भाव के स्वामी हैं सूर्य, वो भी 16 अक्टूबर को अपनी नीच अवस्था में चले जाएंगे 12वें भाव में। तो दशम भाव का मालिक जब 12वें भाव में जाता है तो व्यक्ति के लिए फॉरेन जाने की अपॉर्चुनिटीज खुलता है। लेकिन अगर आप 12वें भाव से जुड़े हुए ही प्रोफेशन में हैं, यानी कि अगर आप किसी भी एमएनसी में काम करते हैं, या फिर आप किसी अस्पताल या चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए हैं, या आप शॉपिंग मॉल्स में काम करते हैं, तो भी ये आपके लिए ये जो ट्रांजिट है ये अच्छा साबित होगा। यहाँ पे शुक्र भी सूर्य को ज्वाइन कर लेंगे 19 अक्टूबर से, और
सूर्य का नीच भंग कर देंगे। अभी 15 अक्टूबर तक शुक्र नीच राशि में है, लेकिन बुध उनका नीच भंग कर रहे हैं 11वें भाव में, और 19 अक्टूबर के बाद सूर्य का नीच भंग शुक्र करेंगे। तो जब भी किसी ग्रह का नीच भंग होता है तो उसके भी अच्छे परिणाम व्यक्ति को देखने के लिए मिलते हैं। तो यहाँ पर चूंकि शुक्र सप्तम भाव के भी स्वामी हैं और सप्तम भाव बिजनेस दिखाता है, और सप्तम भाव के स्वामी का 12वें भाव में जाना और दशम भाव के स्वामी का भी 12वें भाव में बैठना, यानी कि अगर आपका बिजनेस है किसी भी ऐसी रिलेटेड जगहों से, यानी मान लीजिए आप कहीं पर डिप्लोमैट हैं, आप ब्यूरोक्रेट हैं, तो भी ये आपके लिए अच्छा समय निकलेगा। क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स बाहर जो भी प्लेस्ड होते हैं, जैसे आईएफएस ऑफिसर्स होते हैं, या कई बार आप गवर्नमेंट की जॉब करते हैं, कहीं किसी और देश में रह के अपने देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, एम्बेसडर्स वगैरह हो गए, उनके लिए भी ये समय अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट के काम में हैं, अगर आप कपड़े का एक्सपोर्ट इंपोर्ट में का बिजनेस करते हैं, जेम्स एंड ज्वेलरीज से जुड़े हुए हैं, या फिर आप हाई एंड क्लोथिंग या व्हीकल्स के बिजनेस में हैं, तो भी ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि बिजनेस का स्वामी और कर्मेश दोनों ही 12वें भाव में बैठे हुए होंगे, और ये पोजीशन आपको अच्छा कंट्रीब्यूशन दे के जाएगी। अक्टूबर के महीने में गुरु पंचम भाव से गुजर रहे हैं अभी, और गुरु बहुत महत्वपूर्ण ग्रह हैं क्योंकि वो द्वितीय और पंचम भाव के स्वामी बनते हैं, दोनों ही वेल्थ से जुड़े हुए भाव हैं। तो यहाँ पर जितने भी लोग स्पेक्यूलेशन के बिजनेस में है, शेयर बाजार से वगैरह, उनके लिए 1 से 15 अक्टूबर का समय बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर गुरु के ऊपर तीन तीन ग्रहों की दृष्टि पड़ेगी। सूर्य जो कि दशम भाव के स्वामी है, शुक्र जो कि सप्तम भाव और 12वें भाव के स्वामी है, और बुध। तो ये सारे ही 11वें भाव के मालिक का भी दृष्टि पंचम भाव पे पड़ेगा। गुरु स्वयं की राशि में बैठे होना, तो पंचम भाव को अक्टूबर के महीने में खास करके 1 से 15 अक्टूबर में बहुत बली कर देगा। और अगर आप शेयर बाजार में किस्मत आजमाना चाहते हैं तो 15 अक्टूबर तक का समय बहुत अच्छा है आपके लिए। अगर आप स्टूडेंट हैं तो गुरु स्वयं ही विद्या के कारक हैं, और पंचम भाव के स्वामी का पंचम भाव में ही बैठे रहना, यानी कि स्टूडेंट्स के लिए तो पूरा महीना ही बहुत अच्छा रहेगा। एक नज़र शनि पे डालते हैं। शनि तृतीय और चतुर्थ भाव के स्वामी हैं, लेकिन अक्टूबर के महीने में शनि मंगल के नक्षत्र से निकलेंगे। तो जो सेकंड हाफ है अक्टूबर का, तब व्यक्ति को बहुत ही ज़्यादा एफर्ट करना पड़ेगा अगर वो अपने कार्यस्थल पर भी सफल होना चाहते हैं तो। और इन जनरल क्योंकि सैटर्न आपका एक्शंस का या कर्म का कारक है, तो व्यक्ति को बहुत जोर लगाना पड़ेगा अपने कार्यस्थल पर सफल होने के लिए अक्टूबर के महीने में। बुध अष्टम और 11वें भाव के स्वामी हैं और 11वें भाव से ही गुजर रहे हैं। यहाँ पर गुरु की दृष्टि इनके ऊपर पड़ती रहेगी। तो आपके जितने भी बिजनेसेस हैं, इंश्योरेंस से अगर आप जुड़ा हुआ काम करते हैं, किसी भी तरह के ब्रोकरेज या कमीशनिंग से जुड़ा हुआ आपका व्यवसाय है, टैक्सेशन या रिसर्च से संबंधित आप काम करते हैं, तो उनको ये मरकरी के प्लेसमेंट से काफ़ी फायदा मिलेगा अक्टूबर के महीने में। ओवरऑल अगर आप देखिए तो बिजनेस के पर्सपेक्टिव से ये बहुत अच्छा महीना है, और डिपेंडिंग ऑन कि आप कौन सा बिजनेस करते हैं उसके हिसाब से आपके लिए अक्टूबर का महीना फायदेमंद हो सकता है। राहु और केतु 6वें और 12वें भाव में बैठे हुए हैं, और ये दोनों ही पोजीशंस इन ग्रहों के लिए बहुत अच्छी हैं। राहु 3, 6 और 11 में उत्तरोत्तर बलवान होता जाता है। 11वें भाव में बहुत जोरदार रिजल्ट देता है राहु, लेकिन छठे में भी उसके बाद सबसे अच्छा रिजल्ट देता है। तो यहाँ पे राहु बैठ के आपके दुश्मनों को नेस्तनाबूद करने का कार्य करता है। तो जितने भी लोग जैसे वकालत से जुड़े हुए हैं, या जहाँ पर भी एक ऑपोजिशन के साथ उनका रोज के बेसिस पे पाला पड़ता है, उनके लिए अक्टूबर का महीना अच्छा साबित होगा। राहु यहाँ पे बैठ के उनके दुश्मनों को सफाया करते रहेंगे। केतु 12वें भाव में बैठ के व्यक्ति को स्पिरिचुअलिटी में हायर प्लेन्स पे लेके जाते हैं। तो जितने भी लोग आप साधु संत देखिए, जितने भी लोग स्पिरिचुअलिटी में तरक्की किए हैं, उनका केतु के साथ 12वें भाव में संबंध जरूर आता है। यहाँ पे केतु को सूर्य, शुक्र और बुध 25 अक्टूबर के बाद तीनों प्लैनेट्स यहाँ आ जाएंगे। केतु के साथ 4 प्लैनेट्स का जमावड़ा हो जाएगा, जिसको हम लोग वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में स्टाइलम भी बोलते हैं। यहाँ पे एक जो अच्छी सलाह हो सकती है वृश्चिक लग्न वालों के लिए, वो यही है कि आप 12वें भाव से जुड़ा हुआ कार्य करते रहें जब तक मंगल भी आपके अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। यानी कि 13 नवंबर तक आप जितना अष्टम और 12वें भाव को इस्तेमाल कर लें, ज्योतिष्य में अपनी लग जाएं कुछ नया सीखने के लिए,
या अपना कुछ रिसर्च में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ही आप कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा शॉपिंग मॉल्स में खरीदारी करना, विदेश भ्रमण करना या विदेशी लोगों के साथ कांटेक्ट में आना, अगर आप कार्य करते हैं ऐसी जगहों पे, ये सब आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा अक्टूबर के महीने में। हर महीने में कुछ डेट्स होते हैं जब व्यक्ति को केयरफुल रहना पड़ता है। यहाँ पे चूंकि लग्नेश ही अष्टम भाव में जा रहे हैं, तो 16 अक्टूबर से लेकर 13 नवंबर तक, जब तक लग्नेश यहाँ बैठे हुए हैं, ये बहुत कॉशियस रहने का समय है वृश्चिक लग्न वालों के लिए। आपके किसी भी तरह से लोगों के साथ वर्बल वाद विवाद आप टालिए, क्योंकि वो वाद विवाद लड़ाई में भी कन्वर्ट हो सकते हैं, फिजिकली मारा मारी जिसको बोलते हैं वो। तो आप किसी के साथ वाद विवाद टालिए इस महीने में, क्योंकि वैसे भी वृश्चिक लग्न के लोगों को मजा आता है लड़ाई करने में, क्योंकि उनका षष्ठेश भी मंगल ही होता है। तो थोड़ा सा अपने आप पर कंट्रोल रखिए इस समय में, और थोड़ा कॉशियस अप्रोच लीजिए, तो ये महीना आपके लिए अच्छा साबित होगा। तो ये आपकी समरी है स्कॉर्पियन लग्न के लिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और ये वीडियो देखने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।